Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I welcome you all in your online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. Alright students, let's start. First of all, you all have to recap the functions of operating system, and for today we are having objectives that you all are going to be able to understand the process management, and we are going to go through the textbook page number 16 up till 20, and the topic is process management. सो द टॉपिक इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट. व्हाट इज़ प्रोसेस? प्रोसेस जो है वो क्या चीज़ है? वो कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वेट कर रहे होते हैं. प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट एलोकेट्स सिस्टम रिसोर्सेज टू वेरियस प्रोसेसेस सो दैट दे कैन रन एफिशिएंटली. आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं प्रोसेस की. इनको हम लोग जो है वो इन डिटेल अभी डिस्कस करते हैं. Process. A process is a program in execution. For example, when we write a program in C or C++ language and compile it, the compiler creates a library code. That is binary code. The original code and binary code both are programs. When we actually run the library or binary code, it becomes a process. Process is a part of program under execution that is scheduled and controlled by the operating system. When a program is loaded in memory for execution, it becomes a process. A program is an executable code that is stored in disk as a text file, whereas a process is a dynamic instance of a program during its execution in RAM. It represents basic unit of work. It uses various resources of computer such as CPU time, file, IO devices, memory, etc. So these are the various states of a process. There are 5 states of a process which are new, ready, running, waiting and terminated as shown in the पिक्चर. सबसे पहले हम लोग देख रहे होते हैं कि जी न्यू स्टेट है, उसमें हमारा प्रोसेस एडमिट होता है, फिर रेडी स्टेट में जाता है, वहाँ से डिस्पैच होकर रनिंग स्टेट पे जाता है, और अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो एग्जिट हो जाता है और टर्मिनेटेड स्टेट पे चला जाता है. इसी तरीके से न्यू प्रोसेस जो है वो जब एडमिट होता है रेडी स्टेट पे, तो फिर उसके बाद डिस्पैच होता है रनिंग के लिए. अगर बीच में कोई इंटरप्ट आ जाता है तो वो वापस जो है वो रनिंग स्टेट पे चला जाता है, एंड अगेन उसका साइकिल जो है वो डिस्पैच किया जाता है रनिंग के लिए, एंड देन जो है वो एग्जिट हो जाता है एंड टर्मिनेट हो जाता है. और अगर जो है आपका प्रोसेस जो है वो एडमिट किया जाए रेडी स्टेट पे, फिर वहाँ से डिस्पैच होगा रनिंग पे, और इनकेस वहाँ पे कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है या ब्लॉक हो रहा है तो वो ब्लॉकिंग स्टेट पे चला जाएगा, ब्लॉकिंग से ब्लॉक पे जाएगा, फिर दोबारा से वो अनब्लॉक होकर फिर रेडी स्टेट में सेंड किया जाएगा, फिर उसका सर्कल चलेगा, फिर अगेन डिस्पैच होगा रनिंग के लिए, एंड देन अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर वो एग्जिट होकर टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. States of processes. New state. This is the first state of a process when it is created any new operation or services that is requested by a program for execution by the processor is known as new state of process. Then we are having ready state. A process is said to be in ready state when it is ready for execution but it is waiting to be assigned to the processor by the operating system. ठीक है. उसके बाद है running state. A process is said to be in running state when it is being executed by the processor. A process is assigned to a processor for execution by operating system. Blocked state, waiting state. A process is in blocked or waiting state when it is not under execution. It is waiting for a resource to become available. Then we are having the last state, that is terminated state. A process is in terminated state when it is complete its execution. These are the states. So the next topic is thread and process. In programming, there are 2 basic units of execution, process and threads. They both execute a series of instructions. दोनों का एक ही तरह का काम होता है. A process is an instance of a program that is being executed. ठीक है जी. ये एक प्रोग्राम का एक इंस्टेंस है, एक पार्ट है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है. A process may be made up of multiple threads. ठीक है. प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं. थ्रेड क्या चीज़ है? A thread is a basic ordered sequence of instruction within a process that can be executed independently. थ्रेड क्या होता है? याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि कुछ ऐसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी कि ये किसी रिसोर्स का वेट नहीं करेंगे कि वो उसको अलॉट हो और वो एग्जीक्यूट हो. तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होने वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो थ्रेड कहलाती हैं. और प्रोसेस जो होते हैं
प्रोसेस के अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं, तो उन प्रोसेसेस के अंदर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उनको हम लोग थ्रेड कहते हैं। द थ्रेड्स आर मेड अप द थ्रेड्स आर मेड ऑफ एंड एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस के अंदर ही बनते हैं और उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। एवरी प्रोसेस हैज़ एट लीस्ट वन थ्रेड। ठीक है, कि उसमें कोई ना कोई थ्रेड जो है वो लाजमी होगा। मल्टीपल थ्रेड्स कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेसेस एंड शेयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऐसे कुछ थ्रेड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि रिसोर्सेज शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली थ्रेड है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो प्रोसेस के अंदर जो है वो एक थ्रेड मिनिमम होना जो है वो ज़रूरी है, और एक से ज़्यादा जो है वो भी हो सकते हैं। सो देयर इज़ द कंपैरिजन बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस जो है वो क्या है? अब एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ऑन द अदर हैंड अ थ्रेड इज़ अ सबसेट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है जी, ये उसका एक पार्ट है, ये इंटायरली जो है वो प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ये प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, सबसेट होता है। पॉइंट नंबर 2 इज इट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ द डाटा सेगमेंट इन द पेरेंट प्रोसेस, और थ्रेड में क्या है? इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटा सेगमेंट ऑफ इट्स प्रोसेस। ठीक है जी, जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस किसी पेरेंट प्रोसेस का जो है कुछ डाटा जो है वो कॉपी करके लेकर आ रहा होता है, लेकिन जो थ्रेड है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट होता है और ये डायरेक्टली जो है वो एक्सेसिबल होता है, इसको डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, और ये किसी दूसरे डाटा का या किसी पेरेंट प्रोसेस का जो है वो हिस्सा नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, एनी चेंज इन द प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेसेस। और थ्रेड में क्या है? एनी चेंज इन द थ्रेड में अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अदर थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेसेस। Point number 4 is processes run in separate memory spaces and threads run in shared memory spaces। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि प्रोसेसेस जो है वो सेपरेट मेमोरी स्पेसेस ले रहे होते हैं, और जो थ्रेड्स होते हैं वो शेयर्ड मेमोरी स्पेसेस ले रहे होते हैं। शेयर्ड का मतलब ये है कि वो डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस जो है उसको जो है वो ले रहे होंगे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए। पॉइंट नंबर 5 इज प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थ्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्रामर्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन थ्रेड्स को कौन कंट्रोल करता है? आपका प्रोग्रामर। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस क्या है? पॉइंट नंबर 6, प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट एंड थ्रेड्स आर डिपेंडेंट। ठीक है, ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट क्यों है और थ्रेड डिपेंडेंट क्यों है? अभी हम लोगों ने देखा कि थ्रेड को हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंट होता है। ये यहाँ पे उसके एग्जीक्यूशन की बात करें कि प्रोसेसेस जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और थ्रेड्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। वो उन्होंने ये बात क्यों कही है कि प्रोसेसेस के अंदर जो है प्रोसेस एक्चुअली क्या है? वो कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी एक टास्क को परफॉर्म कर रही होती हैं, और इन्होंने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना होता है। अब थ्रेड चूँकि क्या है? उसका सबसेट है, उसका एक हिस्सा है एक प्रोसेस का, तो थ्रेड जो है वो तब तक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो थ्रेड की एग्जीक्यूशन का या कंप्लीशन का कंप्लीट होना जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, कि जब तक आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो थ्रेड की डेफिनेशन है कि उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि उनको किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। कुछ पॉइंट्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली जो है एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, इनका नाम जो है वो क्या है? वो थ्रेड कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग। A process of execution multiple threads simultaneously is known as multi-threading. Multi-threading is an execution method of a program that allows a single process to run multiple threads at the same time। ठीक है जी, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे थ्रेड्स को इकट्ठा एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। Multi-threading allows multiple threads to exist within a single process and these threads can execute independently। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उसके अंदर ही कुछ थ्रेड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे होते हैं। द मेन पर्पज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज टू प्रोवाइड साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ 2 or more parts of the program to maximum utilize the CPU time। ठीक है जी, ये इसका मेन पर्पज़ क्या है मल्टी थ्रेडिंग का? कि आपका जो टू प्रोवाइड साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, के एक साथ जो है वो एग्जीक्यूशन बहुत सारे प्रोसेसेस या थ्रेड्स की हो रही हो ऑफ 2 or more पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए ताकि आपकी CPU टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सके। इसकी एग्जांपल आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग है क्या?
मल्टी थ्रेडिंग, अ यूज़र इज़ टाइपिंग अ पैराग्राफ ऑन MS वर्ड, ठीक है, आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, इन द बैकग्राउंड वन और मोर थ्रेड इज़ रनिंग एंड चेकिंग द स्पेल मिस्टेक्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप जब कुछ टाइप कर रहे होते हो तो आपके स्पेल एरर्स जो हैं वो आपको चेक करके अंडरलाइन कर देता है। अगर आपकी स्पेल मिस्टेक्स हैं तो वो रेड अंडरलाइन कर देता है, और अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो वो ग्रीन अंडरलाइन कर देता है। तो ये थ्रेड काम कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली जबकि आप टाइप कर रहे होते हैं। एज सुन एज यूज़र इज़ डूइंग अ टाइपिंग वर्क, द अदर थ्रेड नोटिफाइज द यूज़र अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है, वेब सर्वर्स यूज़ मल्टी थ्रेडिंग ऑल द टाइम, एवरी रिक्वेस्ट इज़ हैंडल्ड बाय अ डिफरेंट थ्रेड, ठीक है। कि जो आपके जो वेब सर्वर्स होते हैं उनका भी यही काम होता है कि वो एक टाइम के ऊपर बहुत सारे थ्रेड्स जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है और सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा होता है, ताकि एवरी रिक्वेस्ट जो भी उस सर्वर के ऊपर जो है एक्सेस करने की, सर्वर को एक्सेस करने की और उसको यूज़ करने की रिक्वेस्ट करता है, तो उसको इसी तरीके से डील किया जाता है। Next is multitasking. Multitasking is the function of operating system that loads multiple program, processes task threads in main memory and executes them at the same time by rapidly switching the CPU among them. The operating system is able to keep track of where the user are in these tasks and go from one to the other without losing information. Each running task takes only a fair quantum of the CPU time. अच्छा जी, मल्टीटास्किंग में क्या है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड्स मल्टीपल प्रोग्राम्स। इसमें प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं, प्रोसेसेस भी आ सकते हैं, टास्क भी आ सकते हैं, थ्रेड्स भी हो सकते हैं। इसका मकसद ये है कि एक टाइम के ऊपर डिफरेंट टास्क जो है वो इकट्ठे एग्जीक्यूट करवाना इन द मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम एट द सेम टाइम बाय रैपिडली स्विचिंग द CPU अमंग टाइम। अब CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है जिसने सारे के सारे प्रोसेसेस को जो है वो टाइम देना है। तो मल्टीटास्किंग के अंदर क्या है कि वो टाइम जो है वो डिफरेंट उसके क्वांटम्स या डिफरेंट टाइम स्लाइसेस जो है वो बनाए जाते हैं, ताकि जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को, प्रोसेसेस को या थ्रेड्स को या टास्क को जो है वो असाइन किया जाए। तो रैपिडली स्विच करने से क्या होगा कि डिफरेंट टास्क को जो है वो CPU का टाइम जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो मल्टीटास्किंग के तरीके से जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम इकट्ठे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। दिस इज़ द वेरी बेस्ट और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे CPU को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। Next topic is multiprogramming. In multiprogramming, many programs are loaded in memory, but the CPU only executes one program at a time. Other programs wait until the previous program is executed or blocked. ठीक है जी, मल्टीप्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक प्रोग्राम जो है उसको CPU का टाइम जो है वो अलॉट किया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए, और बाकी जितने भी रिमेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूज़र लोड्स प्रोग्राम वन से MS वर्ड, लेट सपोज कि हम लोग MS वर्ड कह रहे हैं कि उसको एग्जीक्यूट करें, एंड प्रोग्राम टू से C लैंग्वेज कंपाइलर, द प्रोग्राम इज द CPU इज एबल टू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम दैट इज MS वर्ड और C लैंग्वेज कंपाइलर। ठीक है जी, आप एक टाइम पे एक ही इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। The advantage of multiprogramming is that it saves users time in loading the program to main memory and runs the program quickly. The only drawback is the system requires more memory as it is occupied by many programs. Sometimes bigger programs cannot fully load in main memory and thus programs run slowly. ठीक है जी, ये इसका रीज़न होता है। Okay. Then we are having multiprocessing. Multiprocessing is the ability of an operating system to execute more than one process simultaneously on a multiprocessor machine having more than one CPUs. In this, a computer uses more than one CPUs at a time. ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि प्रोसेसर्स एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा CPU यूज़ हो रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक, so that's all for today's lecture, and your assignment is to solve all the MCQs from the exercise, differentiate between multiprogramming and multithreading by giving one example of each. ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल्स ऑलरेडी उसमें बता दी हुई हैं। डिस्क्राइब द 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस विद डायग्राम, और आपने इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, जो कि आप लोगों की आगे समर ब्रेक आ रही है, तो इसमें आपने इस चैप्टर को कम्प्लीटली थॉरली जो है वो कंप्लीट करना है, और इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी निकालने हैं, और आपको समर टास्क में जो है वो बता दिया जाएगा। इसमें आपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, एंड चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपने उसको गो थ्रू करना है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये भी थ्योरेटिकल है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको 1-2 दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, और आगे जो है नेक्स्ट टाइम आपको इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोगों की थ्योरी जैसे ही ख़त्म होगी, फिर हम लोग इंशाल्लाह जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे, एंड देन
we are going to rock the programs. ठीक है, okay, up till then take care. अल्लाह हाफिज़, bye bye.